Hello students, this is the second part of the three moment theorem. Uh, in the first part I have explained what is Clapeyron's three moments theorem and I have solved one problem for a continuous beam. In this video I will discuss one numerical from the fixed beam, how to solve a fixed beam bending moment using Clapeyron's three moments theorem. So the description of the initial video is given in the description box. So please go through it and after that you start with this video. The link is given in the description box. So quickly I will just go through it, that what does Clapeyron three moments theorem tells that MA L1 plus 2 MB L1 plus L2 plus MC L2 is equal to minus within bracket 6 A1 X1 bar by L1 plus 6 A2 X2 bar by L2. So I have explained all this meaning in that initial video. Now let us see that how we do it for the fixed beam. See, for a fixed beam, as I have explained that also in that video, that in case of a fixed beam, what happens? This is a fixed beam AB. So to apply three moment theorem, we need minimum two span. So but here there is only one span. So what we should do here, we assume a zero span. Zero span, that means span zero. That's why we have shown is at dot 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 and name it as A dash. So we add a zero span over here at the left hand side and now we apply the Clapeyron's theorem. How we apply? See, now as this is a hypothetical one, so moment at this point A dash is what? Zero, right? So what is Clapeyron's theorem? Clapeyron's theorem का फॉर्मूला वापस देख लो, ये क्या था? MA L1 plus 2 MB L1 plus L2 plus MC L2. So MA will be what in this case? MA will be 0, correct? Because this is the hypothetical one, 0. So 0 plus 2 MA. See here 2 MB. Why we have done 2 MB over here? Because B is the mid span, na? So, it is the common point between the two spans. So here it is A, right? Here it is A. Now after that, so 2MA plus 0, this is the span 0, that is L1, L1 is 0 and L2 is L, plus MB into L, this is MB into L is equal to 0. What? Why it is 0? Because in this part, for this A dash, there will not be any bending moment. Because why? Because this is a hypothetical span and here there is no span, no load. So what will be the moment? Bending moment? Nothing. It is 0. So the area of the bending moment diagram is also 0, right? So this will be 0 plus, as I have explained it, it is WL to the power 4 by 4. So please see the earlier video where I have explained the Clapeyron's three moment theorem in details. After that you start with this video. Link is given in the description box. Now let us start with the problem. See, this is a fixed beam problem. Please note down. Yeah, this is a fixed beam problem. Okay. A, B, D, E, C. Please note down the question carefully. Now, after noting it down, now as I have told you, for the fixed end, what we do, we introduce a zero span over here. A dash. This is a zero span over here. Okay. Right. So after that I will come to it one by one. But what is the first step for a free Clapeyron's three moment theorem? First we have to draw the free bending moment. Free bending moment means we should assume it as a simply supported span with a loading and forget that what is the actual. In this case this is fixed, this is roller, this is roller. We will forget each and everything. We will assume that this as a simply supported beam, this is UDL given. So what will be for this AB span के लिए इसको हम लोग simply supported span with UDL, what will be the maximum bending moment? WL square by 8, right? So W is 10 into 5 square by 8, 31.25, right? Right? Okay. Next is BC. For the span BC के लिए BC, ये span के लिए देखो, as this is a symmetrical structure. Why it is a symmetrical structure and symmetrical loading? देखो 2 2 2 and here it is 20 kilonewton 20 kilonewton. So what will be MD and ME over here? That will be 20 into
2 for this span BC. Now you assume BC as a simply supported beam, 20 kilonewton load is acting, right? तो ये पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, ये सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, 20 होगा, because this is 20 plus 20. So VB and VC will equally share 20, right? So here it will be 20 into 2. Similarly, E also will be 20 into 2. So this is the free bending moment. See, दिस इज यूडीएल. यूडीएल के लिए कैसे होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का पैराबोला होता है, राइट? सो वी हैव ड्रॉन अ पैराबोला. और ये देखो, फॉर बीसी सिंपली सपोर्टेड बीम विथ 2 पॉइंट लोड, इसके लिए कैसे डायग्राम बनता है, एक ट्रापिजियम बनता है. ओके, आई again tell you, please request you that you please see the first part of the video, then only go through it, because there I have discussed many concepts which you may not be able to understand. अभी शायद काफ़ी चीज़ समझ में नहीं आ रहे होंगे अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर मैंने लिंक दिया है, पहला वाला वीडियो देख लो, राइट? चलो, तो अभी क्या है, ये जो ए बी पार्ट है, अभी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ए बी के लिए, ये है पैराबोला. तो पैराबोला के लिए क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बराबर? सो 2/3 इंटू बेस कितना, ये 5, और ऑल्टीट्यूड कितना 31.25. कहाँ से आया, इधर से आया, WL²/8 करके. तो ये वैल्यू आ गया. फिर BC के लिए क्या होगा, BC के लिए ये देखो ट्रापिजियम है ना, ट्रापिजियम का एरिया क्या होता है, दिस साइड प्लस दिस साइड. ये कितना है, ये तुम्हारा है 2, करेक्ट? ये देखो इधर से मालूम चल रहा है ना, ये 2 है. ये कितना है, BC 6 है. सो 2 + 6, और इसका हाइट क्या है, हाइट है 40, है ना, इधर से निकाला था 40. सो 40/2 इंटू 2 + 6, तो ये 160 आ गया. तो एरिया भी हम लोगों ने निकाल लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट. ये जो एक्स बार है, करेक्ट, दिस इज एक्स बार. एक्स बार के लिए क्या होगा बोलो, एक्स बार के लिए पहला है ए बी के लिए, ये पैराबोला के लिए मैंने क्या बोला था, दैट इज एट द मिड पॉइंट, दैट इज 5/2, 2.5 में होगा. और BC के लिए, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल ट्रापिजियम, तो 6 मीटर इसका स्पैन है, तो इसका बीच में होगा, दैट इज 3, राइट? ये पार्ट भी हो गया. अभी क्या है, नाउ वी आर कमिंग टू अप्लाइंग द 3 मोमेंट इक्वेशन. मैंने क्या बोला था, 3 मोमेंट इक्वेशन के लिए हम लोगों को 2 स्पैन लेके हम लोग लिखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, इधर देखो ए डैश मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ए डैश और AB के बीच में हम लोग 3 मोमेंट लगाएंगे, बराबर? तो ए डैश और AB के बीच में अगर हम लोग लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखो फास्ट है, 1 सेकेंड, ये देखो 0 क्यों है, 0 इसके लिए है क्योंकि ये जो ए डैश है ये तो 0 स्पैन है ना, तो ये पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा, 0 होगा, ठीक है? प्लस 2 इंटू MA, 2MA इंटू L1 + L2. तो ये L1 क्या है, ये क्या है, 0 स्पैन है, तो 0 + 5. धीरे धीरे देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे डालो, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है? तो ये हो गया, प्लस MB इंटू 5, MB इंटू 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. ये 0 कहाँ से आया और क्यों आया ये 0, देखो मैंने तुमको वापस ये बेसिक क्या बोला था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेसिक के लिए मैंने क्या बोला था, इधर राइट हैंड साइड क्या रहता है, -6 A1 x1 बार डिवाइडेड बाई L1. तो A1 क्या है, A1 इज द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अभी देखो, फॉर दिस स्पैन ए डैश स्पैन, जब स्पैन है ही नहीं, जिसको 0 स्पैन एज्यूम किया, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा. तो अगर नहीं बनेगा तो इसके लिए तो उसका एरिया क्या आएगा, डायग्राम ही है नहीं तो एरिया क्या आएगा, एरिया भी नहीं आएगा. सो दैट्स वाई इट इज 0, ठीक है? और माइनस, अभी दूसरा पार्ट क्या था, देखो ये था ना 6 A2 x2 बार बाई L2, है ना? तो उसके लिए क्या होगा, देखो माइनस मैंने डाला 6 A2, एरिया क्या था, एरिया देखो ये पार्ट के लिए, AB के लिए सॉरी, AB के लिए एरिया क्या था, ये जो 104.2, तो हम लोगों ने वही लिखा, 6A1 इंटू x1 क्या है, x1 है 2.5, इधर देखो लिख के रखा है 2.5, करेक्ट, डिवाइडेड बाई L1, मतलब उसका AB का स्पैन क्या है, 5. इज इट ओके? सो इसको अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करो, ये क्या आ जाएगा, 2MA इंटू 5 मतलब 10MA, प्लस 5 इंटू MB,
और इसको सिंप्लीफाई करके -312.5। इज इट ओके? ठीक है, ये पहला इक्वेशन समझ में आया। अभी अप्लाइंग थ्री मोमेंट इक्वेशन बिटवीन ए बी एंड बी सी। अभी क्या सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, ए डैश ए बी लिया। अभी हम लोग क्या लेंगे, ए बी और बी सी। याद रखो जहाँ जहाँ पे सपोर्ट है हम लोग उधर ले सकते हैं, जैसे बी डी बी ई, ऐसा नहीं है। ए बी ले लिया, उसके साथ जीरो स्पैन एज्यूम किया। क्यों किया? क्योंकि हमको हमेशा दो दो चाहिए, करेक्ट। एंड इफ वी डू नॉट एज्यूम इट, ये पॉइंट का हमको कभी भी नहीं मिलेगा एम ए का मोमेंट एट ए। कैसे मिलेगा? बिकॉज जो पॉइंट पे हमको मोमेंट निकालना है ना, तो वो पॉइंट मस्ट कम इन बिटवीन, तभी हम थ्री मोमेंट इक्वेशन लगा के कर सकते हैं। तो सोचो इसको, राइट तो अभी क्या लगाएंगे, ए बी और बी सी बराबर। तो ए बी और बी सी के बीच में अगर लगाएंगे तो वापस तुम ये जो है ना मेरा पहला वीडियो के ये जो नोट्स है ना, इसको सामने लेके बैठो, ये लिखो, देख के चलो। तो एम ए इंटू एल वन, तो क्या हो जाएगा इसके केस में, एम ए इंटू 5 हो जाएगा बराबर। देखो एम ए इंटू 5 प्लस 2 MB इंटू 5 प्लस 6, ये वाला 2 MB, ये जो 5 हो गया और ये स्पेन हो गया 6 हो गया, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्लस एम सी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? ये रोलर सपोर्ट है ना, तो रोलर सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसके लिए इधर ज़ीरो लिखा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में इक्वल टू क्या था, -6A1x1/L1। तो ये जो पार्ट है ये मैंने डायरेक्टली इधर से लिखा, क्योंकि ये स्पैन के लिए जब देखो, जब हम लोग ये दो स्पैन कर रहे हैं ना, इसका जो पार्ट आया था, इसका जो भी कैलकुलेशन आया था, अभी जब ए बी और बी सी कर रहे तो यही कैलकुलेशन सेकेंड पार्ट में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, जो इधर लिखा था, तो वही पार्ट इधर लिखा। -6A1 मतलब इसका एरिया क्या होगा बोलो, इसका एरिया होगा 160, इधर निकाला देखो, इंटू 3/6। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला इक्वेशन आता है। तो हमारा 1 और 2 इक्वेशन आ गया। तो ये दो इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करके मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी निकाल सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, FX95 जो कैशियो का मॉडल है, उधर से डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होता है। और भी सारे हो सकते हैं कैलकुलेटर, आई डोंट नो अबाउट द मॉडल नेम, बट FX95 से होते हैं। और अगर इक्वेशन सॉल्व तुम्हारे कैलकुलेटर से नहीं हो रहे हैं, सो यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व दिस इन दिस वे। जैसे 5 MA और इधर 10 MA है ना, तो MA को कैंसिल आउट करना है तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बराबर ना। सो क्या हो जाएगा, 10 MA प्लस 44 MB इज इक्वल टू माइनस दिस इंटू 2, वो हो जाएगा। तो इधर अगर 10 MA हो जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करोगे तो कट हो जाएगा ना, तो तुम्हारा MB का वैल्यू आ जाएगा। सो बाई दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट। तो MA और MB का वैल्यू आया, क्या आया देखते हैं, -14.9 एंड -32.6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो MA का वैल्यू है 14.9, ये देखो 14.9। MB का वैल्यू आया है 32.6। B का वैल्यू देखो, इधर मैंने क्या किया है, ये देखो B में 32.6, C का 0 होगा। क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, समझ में आया। A में Q है, ये फिक्स सपोर्ट है, तो इसका तो मोमेंट आएगा बराबर। ये जो बीच में रहता है इंटरमीडिएट, उसमें भी हमेशा मोमेंट रहता है। तो 14.9 32.6, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारा एक पार्ट हो गया। अभी हमको क्या है, ये जो लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेंगे वो ड्रॉ करना है। ये क्या ड्रॉ किया था, ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। उसका मतलब क्या है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब जो भी हमारे पास सपोर्ट है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो है ही नहीं। फिक्स सपोर्ट है, नहीं है। रोलर है, नहीं है। इधर रोलर है, नहीं है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि नहीं है वो सपोर्ट। और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर ऐसा लोडिंग होता है तो कैसा BMD बनेगा, तो वो दैट इज़ द फ्री BMD, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल वन। क्योंकि सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट का बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अभी उसके ज़रिए हम लोग एक्चुअली ये लोडिंग के वजह से बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, वी विल ड्रॉ इट। ओके, तो चलो चालू करते हैं। तो कहाँ से चालू करेंगे, इधर तक हम लोग आ गए थे ना। तो अभी रिएक्शन निकालने के लिए देखो, ये क्या है, MB, ये हमको मालूम है -32.6। हाँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना, ये जो मोमेंट हम लोग लिखते हैं, दिस इज़ द बेंडिंग मोमेंट,
दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वी आर फाइंडिंग, सो दैट मीन्स इट इज सेक्शन वाइज। तो BMB -32.6, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बेंडिंग मोमेंट होता है सेक्शन वाइज, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके देखते हैं। सो -32.6 इज इक्वल टू, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे उसका मतलब क्या है, ये देखो इधर है इतना -32.6 है ना। ये सपोर्ट में अगर रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन एक रहेगा है ना, तो उसको हम लोग VA लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये कैलकुलेशन के बाद लिखा है, देखो कलर भी अलग है ना। तो VA इंटू 5, समझ में आया क्या, VA इंटू 5 माइनस, अभी इसके साथ A में ऑलरेडी एक मोमेंट है, क्यों, अभी अभी हम लोगों ने निकाला पेंडिंग मोमेंट एट A, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद और क्या आएगा, ये जो UDL है उसके वजह से भी मोमेंट आएगा एट द पॉइंट B। तो UDL क्या है, 10 इंटू 5, दैट विल बी द लोड, इंटू 2.5। देखो वापस -32.6 जो बेंडिंग मोमेंट एट B है, ठीक है, VA इंटू 5 जैसे मैंने समझाया था, -14.9 मतलब MA वाला वैल्यू माइनस UDL वाला, ठीक है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इधर से VA का वैल्यू आ जाएगा। ये हम लोगों ने कौन सा सेक्शन लिया, बेंडिंग मोमेंट एट B के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिया। सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर द राइट हैंड साइड। -32.6 इज इक्वल टू VC इंटू 6 -20 इंटू 2 -20 इंटू 4। कैसे आया देखते हैं वापस, चलो ये देखो VB में वापस लिखेंगे, अभी राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या आएगा बोलो, VC इंटू 6 है ना, VC इंटू 6, फिर 20 इंटू 4, फिर 20 इंटू 2, राइट, समझ में आया। तो लाइक दैट वे वी हैव रिटन ओवर हियर, कहाँ पे ऐसा। तो इधर से VC का वैल्यू आ गया, देखो VA आ गया, VC आ गया। अभी क्या है, अभी हम लोग समेशन FY लगाएंगे, VA VB VC इज इक्वल टू ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 5 है ना, ये लोडिंग +20 गॉट इट। तो इधर से ये कितना आया, 90 आया। तो इसके बीच में अभी देखो VA का वैल्यू आ गया, VC का वैल्यू आ गया, तो हम लोग VB का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सो दैट विल बी 54 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारा सारे रिएक्शंस आ गया। तो ये जो रिएक्शन है, इधर से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो अभी बेंडिंग मोमेंट एट A निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट A, ये देखो A B और C, ये तो 0 है, बेंडिंग मोमेंट C है ना 0, और ये निकाला है, ये भी निकाला है। बेंडिंग मोमेंट एट C 0 क्यों बोला, और एक बार याद दिला देते हैं, इधर ये 0 बोला था है ना, ये रोलर सपोर्ट है तो 0 तो ऐसे भी होगा। तो 3 पॉइंट का हो गया। अभी हमारा बचा कौन सा पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये जो है एक जो मिड पॉइंट है F, फिर D और ये 3 ही पॉइंट बचा है, बाकी सारे पॉइंट का हम लोगों ने निकाल लिया, करेक्ट। तो अभी देखो बेंडिंग मोमेंट एट E, पहले देख लो 14.6 इंटू 2 ये कहाँ से आया, 14.6 क्या है देखो, अभी देख लेते हैं VC इंटू 2, कौन सा पॉइंट का, बेंडिंग मोमेंट एट E। बेंडिंग मोमेंट एट E कहाँ पे आया, E कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट, E पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, VC इंटू 2, सो सिंपल, ठीक है ना, 14.6 इंटू 2 बराबर ये हो गया। फिर हम लोग अगर बोलेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट D निकालो, बेंडिंग मोमेंट एट D कैसे निकालोगे, देखो VC इंटू 4 बराबर, VC इंटू 4 -20 इंटू 2, सो देखो VC इंटू 4 -20 इंटू 2 तो 18.4 D हो गया। अभी बेंडिंग मोमेंट एट F कैसे निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट एट F, तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हैं ना। F पॉइंट कहाँ पे है, F पॉइंट देखो, F पॉइंट इधर है ना, तो इधर के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड से आसान पड़ेगा। तो क्या होगा, VA इंटू 2.5 बराबर F इज़ द मिड पॉइंट, सो VA इंटू 2.5 कहाँ से आया, 5 मीटर स्पैन है, उसका आधा मतलब 2.5 बराबर, VA इंटू 2.5 माइनस 10 इंटू ये जो UDL है ना, UDL ये पॉइंट तक कैसे होगा, 10 इंटू 2.5, ये 2.5 है, इतना सा स्पैन है 2.5 बराबर, सो 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5/2 मोमेंट ले रहे हैं बराबर, ये हो गया।
और क्या होगा, और देखो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ऑलरेडी एक मोमेंट है ना, ये जो हम लोगों ने इधर से निकाला था ये मोमेंट है, तो वो भी लेना पड़ेगा 14.9। तो फाइनली देखो यही इक्वेशन लिखा तो ये 7.6 आया। तो देखो सारे वैल्यूज़ हमारे आंखों के सामने है। फास्ट थ्री दे आर द सपोर्ट मोमेंट, और ये जो है ये सब हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट का मोमेंट 29.2, 18.4 और 7.6। तो चलो इसको इधर मार्क करते हैं और ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ई है 29.2, तो इधर से क्या करो ना, ये देखो सबसे पहले ना इधर से वर्टिकल लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल सब ड्रॉ करो, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ई है 29.2, फिर डी में है 18.4, है ना, थोड़ा सा कम हाइट पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और लास्ट में एफ में है 7.6, कहाँ पे, इधर है 7.6, ये है ई पॉइंट। तो ये अगर ड्रॉ कर लिया तो अभी नेचर कैसे समझ में आएगा, नेचर कैसे समझ में आएगा बोलो, कि लाइन से ड्रॉ करेंगे या ऐसे गोल ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ अ पॉइंट लोड ना, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो 7.6 वाला जो है ये जगह पे ये तुम्हारा कैसा होगा, पैराबोला से होगा, क्यों, क्योंकि इधर यूटीएल है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया है, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगता है मेरा मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ इसको फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट भी डालो, और जो भी डाउट्स है वो भी डाल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो। और मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो इट कैन बी ऑन आवरली बेसिस। मैडम 1 घंटा के लिए आपके पास से कुछ डाउट ही सिर्फ क्लियर करना है तो भी मैं करती हूँ। नहीं मैडम आपके पास मेरा पूरा सेमिस्टर का ये सब्जेक्ट समझना है, वो भी मैं करती हूँ। मैं गेट एग्ज़ाम के लिए भी मैं तैयारी करवाती हूँ, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, फ्यू सब्जेक्ट्स। तो कोई भी डाउट है तो मेरे को इधर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी दिया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उधर में भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो कैसे लग रहा है और कौन सा टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो और बना तुम लोग देखना चाहते हो, तो वो टॉपिक भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, so I will come up with a new video very soon. Till then, bye bye.